ICCRA 2025 आयुर्वेद विज्ञान और वैश्विक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श। वाराणसी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान अंतर्गत आयुर्वेद संकाय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कटिंग एज रिसर्च इन आयुर्वेद ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ ICCRA 2025 के अंतर्गत पूर्ण सत्रों प्लेनरी सेशंस एवं वैज्ञानिक सत्रों में आयुर्वेद की समकालीन प्रासंगिकता, वैज्ञानिक प्रामाणिकता और वैश्विक स्वास्थ्य में उसकी भूमिका पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में लगभग 20 प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जबकि 50 से अधिक शोधार्थियों ने विभिन्न विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। मैं प्रोफेसर PK गोस्वामी, संकाय प्रमुख, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और ये त्रिदिवसीय अंतर्जातिक संगोष्ठी का आयोजन समिति का अध्यक्ष हूँ। यहाँ 3 दिन हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयुर्वेद संकाय की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का विषय है कटिंग एज रिसर्च इन आयुर्वेद ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। तो इसी 3 दिन में हम लोग संगोष्ठी का आयोजन किया कि आयुर्वेद तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में जो विश्व के विभिन्न प्रांत में क्या गवेषणा हो रहा है, आयुर्वेद तथा आनुषंगिक पारंपरिक चिकित्सा के विकास के लिए क्या प्रचेष्टा हो रहा है, उसके लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। और इसमें देश विदेश के करीब 300 से ऊपर प्रतिनिधि भाग लिए हैं। और 17 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ। आज द्वितीय दिन का कार्यक्रम हो रहा है और आगामी काल उसका समाप्त हो जाएगा। इसमें खास तरह से आयुर्वेद को मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रहा है और इसमें रूपांतर करने के लिए क्या क्या समस्याएं आ रहा है, सरकार क्या कर रहा है और इसी में पब्लिक को क्या फायदा हो सकता है, इसी विभिन्न आयाम में चर्चा हो रहा है। और सबसे जरूरी चीज ये है कि आयुर्वेद औषधि या जिसको हम लोग प्लान ओरिजिन मेडिसिन बोलते हैं, उसके ऊपर क्या क्या रिसर्च हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिसर्च in traditional medicine and generally in Ayurveda, what problems generally arising and what are the legal aspects of these things and how we can transform this concept of traditional medicine and Ayurveda to transfer it with scientific evidence and go for economic development of the society or develop the pharmaceutical industry based on plant-based medicines. All these aspects has been discussed. Apart from this, certain approach has been discussed that how clinical practices can be improved by incorporating the newer technique, and ultimately we can give a very sustainable health models for common people, not only in India, all over the globe, because all the traditional system has been very increasingly become popular all over the globe, and there is a very quest of the common people for plant-based medicine and Ayurvedic medicine. So all these aspects have been well addressed in these different sessions by the different researchers, different scholars, those who assembled here, and particularly we have been getting good research persons from South Korea, which have been discussing the pranic healing. Similarly, what are maybe the scope of traditional plant medicine available in Indian subcontinent or Asian countries. This concept has been well addressed from the representative of Nepal, Bangladesh and Sri Lanka. Apart from this, what are the views regarding the Ayurveda in Western countries, in particularly United States of America? What are the legal barriers? All these also have been addressed in these sessions, and I think this 3 days program is considered to be a very successful one, and definitely it will going to contribute some positive aspect for policy making in national level and international level in near future. So I thank the different scholars, participants, those who make this event successful, and I also extend sincere thanks to the members of the media, particularly print media and electronic media, for their well coverage of all the different events. Thank you very much. मैं चंद्रशेखर पांडे, मैं प्रोफेसर हूँ और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ स्वास्थ्य पूरे विश्व की एक समस्या है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति नहीं रहेगा तो पूरे विश्व में कोई कार्य करने के लिए नहीं रहेगा। तो स्वास्थ्य समस्या के लिए
पूरा विश्व समय समय पर कार्य करता रहा है। WHO ने एक डिक्लेरेशन दिया, अलमाटा डिक्लेरेशन, जिसमें कहा गया हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD, 2000 तक सबको स्वास्थ्य देंगे। लेकिन यह घोषणा उत्पन्न हुई, ढेर सारे सेंटर्स बनाए गए, मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए गए, लेकिन हेल्थ की कंडीशन डाउन चली गई। तब उनका ध्यान गया कि क्या भारत में कोई ऐसी व्यवस्था है जो स्वास्थ्य के लिए कोई नया तरीका दे सकती है। आज भी हम लोग कहते हैं लाइफ स्टाइल मीडिएटेड डिजीजेस, लगभग 75% से ज्यादा ऐसी व्याधियां हैं जिनको हम अगर अपने जीवन के आहार विहार, दिनचर्या, अपने खाने पीने के तौर तरीकों में परिवर्तन कर लें तो उससे हम बच सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे एक्सीडेंटल वो चल रहे हैं, सोशल समस्याएं आ रही हैं, कोर्ट कचहरी की आ रही हैं, उसके लिए भी हमारे पास है कि हम लोगों से कैसे बिहेव करें। उसके लिए आयुर्वेद में एक व्यवस्था है सद्वृत्ति की। तो समाज में इस समय स्वास्थ्य की जो दिशा चल रही है उसमें मेडिकली या नॉन मेडिकली कैसे कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है, यह व्यवस्था देखने में आयुर्वेद सबसे आगे देखा गया कि आयुर्वेद में जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यक्ति को मेडिकली और नॉन मेडिकली, सोशली भी कैसे आपको रिपेयर करती हैं, कैसे आपको रोगों से बचाती, कैसे आपके स्वास्थ्य को ठीक रखती हैं। इस दिशा में विथ प्रूफ कहा जाता है कि साइंटिफिकली प्रूव्ड हो तो जो हमारी विधियां हैं उनके विषय में कैसे कार्य चल रहे हैं, उनको कैसे बताया जा रहा है कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, लोग कहाँ कहाँ किस तरह का कार्य कर रहे हैं। आयुर्वेदिक कुछ विधियां अन्य देशों में जो अपने तरीके से डेवलप किया गया है वो आपस में मिल करके एक दूसरे की विधियों, प्रयोगों, उनके रिजल्ट्स, उनका एक कंक्लूजन बनाया जाता है कि किस जगह कौन सी चीज अच्छी है और किसको अब जन सामान्य के लिए प्रयोग करने के लिए सुनिश्चित किया जा सकता है कि अब इसको जन सामान्य के प्रयोग के लिए दिया जा सकता है। आज सर कॉन्फ्रेंस का सेकेंड डे है, कितने लोगों ने रिसर्च पढ़ा, कहाँ से लोग? आज ऊपर के सेशन में लगभग 30 या 35 पेपर पढ़े गए हैं अभी तक, और नीचे का प्लेनरी सेशन था। प्लेनरी सेशन में मोस्टली ऐसे विद्वानों के लेक्चर आमंत्रित किए जाते हैं जो एक दिशा देते हैं। उनका अपना रिसर्च भी हो सकता है, उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है जो स्वास्थ्य की दिशा को प्रभावित करती है। आज रिसर्च की दिशा में यहाँ प्लेनरी सेशन में लगभग 6 पेपर हुए, जिसमें फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर BL पांडे जी का था और DK द्विवेदी जी का था, हाँ डॉक्टर विजयन शाह नेपाल का था, मेरा स्वयं का चंद्रशेखर पांडे का था, डॉक्टर सरना हापुरासी श्रीलंका से उनका पेपर था। तो इन लोगों ने आयुर्वेद में रिसर्च कैसे किया जाए या स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक विधियों का कैसे प्रयोग किया जाए, इस पर उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बताई।